Hello everyone. Today we will do chapter number 1 from First Flight book for class 10th, A Letter to God written by G.L. Fuentes. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately puzzles. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. So, this present chapter, A Letter to God, is a story of extreme faith in God. Through this story, the writer G.L. Fuentes has tried to depict the invincible and indomitable faith in God of a simple poor farmer. Lencho was a poor, honest, and hard working farmer. Hence, he wrote a letter to God and asked God to send him money. So, does God send him the money? Does Lencho's letter reach God? Let us find out these questions. And for that, we have to start our story. And actually, I have already divided this chapter into 4 parts, and this is its very first part. And in fourth part, we will discuss its questions answers. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The house, the only one in the entire valley, पूरी घाटी में एक ही घर था, sat on the crest of a low hill. Sat here means situated. जो कहाँ पर स्थित था? Top of a hill. As you see the meaning of crest here, top of a hill. From this height one could see what? Two things. Number one, the river, and the second one is the field of ripe corn. So, what could one see from that height? The river and the field of ripe corn. Corn यहाँ पर है students, मक्का की पकी हुई फसल. Field means खेत, ripe means पका हुआ. And it was dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो मक्का की फसल पे जो पकी हुई थी उसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद कलर के सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे जो इस बात का सिंबल था, साइन था कि जो फसल है वो बहुत अच्छी हो रही है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. बस एक ही चीज़ की कमी थी थोड़ी सी, और वो था एक अच्छी बारिश का होना. सो द अर्थ and the only one the earth needed, and that was the downpour or at least a shower. हल्की बौछार भी आप कह सकते हैं. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, पूरी सुबह लेंचो जो कि एक किसान था जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, जो अपनी खेतों को अपनी फसलों को बहुत अच्छे से जानता था, इंटीमेटली बहुत ही जिसका घना संबंध था अपनी फसलों के साथ, अपने खेतों के साथ, हैड डन नथिंग एल्स, वो और कुछ भी नहीं कर रहा था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बजाय इसके कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगातार देखते चले जा रहा था आसमान में. क्यों देख रहा था वो? क्योंकि उसे ऐसी आशा थी कि वहाँ से जो बादल आएंगे वो क्या लाएंगे अपने साथ? बौछार लाएंगे बारिश की. Now we are really going to get some water woman. यहाँ पर woman किसके लिए यूज हो रहा है? लेंचो की वाइफ के लिए. तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि हमें इस साल क्या मिलने जा रहा है?
अच्छी बारिश मिलेगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो फसलें हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी होंगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर दैट टाइम, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मीन्स डिनर, रात का खाना वो तैयार कर रही थी। एंड शी रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर हमें क्या मिलेगा, बारिश मिलेगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. यहाँ पे देखिए इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि लेंचो के कितने बच्चे थे, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है ओल्डर बॉयज, इट मीन्स उसके जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones, जबकि जो छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, they were playing near the हाउस, वो घर के आसपास ही खेल रहे थे, जब तक कि उनकी मदर उनको आवाज़ देकर बुलाती नहीं है कि चलिए आ जाइए, डिनर इज़ रेडी फॉर ऑल। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से 4 उनके लड़के थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो खाना खाने का टाइम चल रहा था, तभी जो है लेंचो प्रेडिक्ट करता है, पूर्वानुमान लगाता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि क्या होगा, बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें हैं वो गिरना शुरू होंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तभी क्या होता है, लेंचो को नज़र आता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो पहले से ही देख रहा होता है, तो उसे क्या नज़र आता है, ह्यूज, ह्यूज मीन्स लार्ज, बिग, माउंटेन्स ऑफ वॉट, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल, इतने बड़े जैसे कि बहुत कोई पहाड़ हो, इतने बड़े साइज के जो बादल हैं वो उसी के डायरेक्शन में आते हुए उसे नज़र आते हैं। द एयर वॉज फ्रेश, हवा उस समय बहुत ताज़ी थी, स्वीट थी, मन को सुकून देने वाली थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. तो अब लेंचो को जब ये महसूस होता है कि भाई क्या आने वाले हैं, बड़ी बड़ी बूंदें आने वाली हैं पानी की, बारिश की, तो वो अपनी बॉडी पर उस का आनंद लेने के लिए, बारिश का आनंद लेने के लिए खेतों में बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो बताता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो आसमान से नीचे गिर रही हैं, बट दे आर न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पर वो बारिश का कंपैरिजन किससे करता है, न्यू कॉइन से, जैसे सिक्के होते हैं नए नए, उनसे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब जैसे हमारे यहाँ हम 5 के सिक्के, 10 के सिक्के हम चलाते हैं, उनसे हम सामान खरीदते हैं, ऐसे ही वो कहता है कि जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें थी बारिश की, वो तो ऐसे लगती थी जैसे कि 10 सेंट का सिक्का हो, और जो छोटी पानी की बूंदें थी बारिश की, वो ऐसे लगता था जैसे कि 5 रुपए का सिक्का हो। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। तो अब उसके चेहरे पर संतोष के भाव होते हैं, क्योंकि उसे ये ही इंतज़ार था कि वो बारिश कब देखेगा, जिससे कि उसकी फसलें और भी ज़्यादा अच्छे से होंगी। तो वो आइडिया लगाता है कि उसकी जो खेत है राइप कॉर्न का, वाइट फूलों के साथ वो पूरा ढका हुआ होगा। अब वो पूरा ढक जाएगा किससे, इन ए कर्टन ऑफ रेन। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अभी देखो थोड़ी देर पहले उसको हवा कैसी महसूस हो रही थी, ठंडी ताज़ी, लेकिन अब अचानक से क्या होता है, वही हवा जो पहले ब्रीज थी, मन को सुकून देने वाली थी, वो अचानक से चेंज हो जाती है। एंड सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अब एक स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ पर राइटर जो हैं वो हेल स्टोन का कंपैरिजन
न्यू सिल्वर कॉइन्स के साथ करते हैं, जबकि यहाँ पर हमने देखा था कि वो बारिश को न्यू कॉइन्स से कंपेयर करते हैं, यहाँ पर वो हेल स्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर करते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स किसके लिए आ रहा है? जमे हुए मोती किसके लिए यूज हो रहा है? हेल स्टोन्स के लिए। तो लेंचो के जो बेटे हैं वो भी अपने आप को बाहर लाते हैं उस रेन को एंजॉय करने के लिए, साथ ही साथ हेल स्टोन्स जो बड़े बड़े न्यू सिल्वर कॉइन्स नजर आते थे उनको इकट्ठा करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब देखिए थोड़ा सा कहानी में चेंज आता है, क्योंकि लेंचो ने पहले क्या सोचा था कि बारिश आएगी, सब कुछ ठीक होगा, उसकी फसल जो पककर तैयार है वो और भी ज़्यादा फलेगी फूलेगी और उसका जो जीवन है बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि वो एक किसान है तो वो अपनी फसलों को बेचेगा और सब कुछ उसके परिवार में समृद्धि आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। बट इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वो बताता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। यहाँ पर इट किसके लिए यूज हो रहा है? हेल स्टोन्स के लिए। लेंचो बोलता है कि मुझे तो ऐसी आशा थी कि ये बहुत जल्दी से चला जाएगा, बट इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से गया नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। करीब 1 घंटे तक वो ओलावृष्टि वहाँ पर होती ही रही। कहाँ कहाँ पर होती रही? इसके लिए बच्चों आप अंडरलाइन कीजिए। ऑन द हाउस घर के ऊपर, द गार्डन बागीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की चोटी की साइड की तरफ, द कॉर्न फील्ड जो उसका मक्के का खेत था उस पर, एंड ऑन द होल वैली और पूरी वैली में। एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और पूरा का पूरा खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे कि उस पर नमक उड़ेल दिया हो, नमक की चादर बिछा दी गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मक्के की फसल जो थी पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों पर से फूल चले गए, खत्म हो गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब ऐसा नज़ारा देखकर लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जब तूफान चला गया, तूफान खत्म हो गया, तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? उस खेत के बिल्कुल बीचों बीच। और तब उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है insects which fly in big swarms in groups and destroy crops। आपने देखा होगा फसलों के खेतों के ऊपर इस तरह का एक टिड्डी दल उड़ता है जो फसलों को नष्ट कर देता है। तो वो अपने बेटों से कहता है कि उस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते, बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा ही बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमें कोई भी मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो रात बहुत ही भयानक थी, बहुत ही दर्द से भरी हुई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमने इतनी मेहनत की लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम सब क्या होंगे? हम सब भूखे मर जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये चारों क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? सो लेंचो होप फॉर रेन्स एंड व्हाई? As the only thing his field of ripe corn needed was a shower.
तो लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? बारिश की, रेन की, हल्की बौछार की। और क्यों थी? जिससे कि उसकी जो पकी हुई मक्का की फसल है, उसके जो खेत हैं, उस पर एक हल्की सी बौछार पड़ जाती तो वो फसल और भी अच्छी हो जाती। सेकेंड इज, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कैसे लग रहे थे? न्यू कॉइन्स के जैसे। बिकॉज Lencho's crops were ready for harvest, as raindrops would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity. So Lencho compared them with new coins. Right? Third one is, how did the rain change? The rain was pouring down. It was very sweet, it was very fresh earlier. But suddenly a strong wind began to blow, and very large hailstones began to fall along with the rain. All the crops in Lencho's fields destroyed. And the fourth one is, what were Lencho's feelings when the hail stopped? लेंचो की भावनाएं क्या थी जब जो ओलावृष्टि है वो रुक गई? After the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. उसका दिल, उसकी आत्मा पूरी तरह से दुख से भर जाती है. He could see a bleak future for himself and for his family. He was worried about the lack of food in the coming year. तो उसे समझ में नहीं आता कि उसका भविष्य क्या होगा. उसको अपना और अपने परिवार का भविष्य जो है अंधकार में नजर आता है. उसे ये लगता है कि अब आगे इस पूरे साल उन्हें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे. तो आई होप स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं और इसके वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए हैं. नाउ वी विल डू पार्ट सेकेंड इन सेकेंड पार्ट. टिल देन टेक केयर. बाय. प्लीज डू सपोर्ट मी. Do like, share and subscribe my channel. Thank you very much.